بات کی جائے, اور آپ نے بات بھی کر دی. اور پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے بات کی تھی تو ایک آپ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اکثر دیہاتوں سے فون آتے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا میونسپل کارپوریشن کی حدود تک ہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ پہنچ سکیں پہنچ جائیں. یہاں پہ فائر بریگیڈ کے حوالے سے بات کریں, آپ کی گاڑی تو اچھی ہے ماشاءاللہ سے, لیکن چونکہ ایک ہمارے یہاں ایسی گاڑی بھی موجود ہے کہ جو آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے, تو اس حوالے سے کوئی سہولیات ہیں کہ کم سے کم میونسپل کارپوریشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ قابو پا لیں؟ اس میں سر میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا, چونکہ جو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کا کہ میں نے 2 مہینے پہلے اس معاملے کو آلریڈی اس معاملے کو سینسیٹائز کرنے کے لیے کہ چونکہ پچھلے سال بھی سردیوں میں تھوڑے آگ کے حادثات کوئی 3-4 ہوئے پہ ادھر پہ, تو میں نے ڈی صاحب کو لکھا کہ سردیوں میں راولا کوٹ میں آگ کے حادثات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک جائنٹ میٹنگ رکھی جس میں انہوں نے بلدیہ کو بلایا, جس میں انہوں نے ہمارے جو پبلک ہیلتھ ہے پی ڈبلیو ڈی کے پبلک ہیلتھ کے پاس 3 واٹر باؤزر ہیں, اور وہ واٹر باؤزر اس کی جو کیپسٹی ہے ایک واٹر باؤزر کی وہ 10,000 لیٹر ہے, اور ہماری جو فائر کی گاڑی ہے اس میں جو پانی آتا ہے وہ 4,000 لیٹر ہے. اٹ مینس کہ 2.5 گنا زیادہ اس میں پانی ہوتا ہے. جب ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں تو اب بیک اپ میں پھر ڈی سی صاحب نے ایک آرگنائزڈ کر کے ان تینوں چاروں محکموں کو ایون یہ موجودہ جو ڈی سی صاحب موجودہ ڈی سی صاحب نے بدر منیر صاحب نے, اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کیا کہ انہوں نے ایون کہ جو پولیس کے پاس ایک جو واٹر باؤزر ہے جو لائنز کے لیے پانی وغیرہ لے کے جاتا ہے اور پولیس کے لیے, تو ایس پی صاحب نے والنٹیئرلی پھر اس کے ڈرائیور کا نمبر بھی ہمیں دیا کہ آپ کو اگر جب اللہ نہ کرے کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو تو آپ اس کو بھی کال کر سکتے ہیں, اور اپنے کنٹرول روم کو بھی بتایا کہ آپ جب بھی اگر کہیں بڑی آگ ہوتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ پانی چاہیے ہو تو یہ لوگ بھی آپ کی جو بیک اپ میں پانی آپ کو مہیا کریں گے. تو ایک تو یہ معاملہ ہوا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو فائر بریگیڈ کا ہے, چونکہ بلدیہ کی ایک رسپانسبلٹی ہے, چونکہ بلدیہ کے اندر چونکہ صفائی کا اور فائر بریگیڈ کے حوالے سے چونکہ یہ پورا سیٹ اپ ہے اور پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے, چونکہ ریسکیو 1122 کا ایک جدید سیٹ اپ ہے, لیکن یہ پوری دنیا کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے تحریک ہونی چاہیے تھی. اور یہ چونکہ مختلف اضلاع کو پچھلے عرصے میں مظفر آباد کو 2 فائر کی بہت ہی اچھی گاڑیاں ملی بلدیہ کو, اور میرپور میں بہت اچھی 2 گاڑیاں ملی, کوٹلی کے حوالے سے سنا ہے کہ ایک اچھی تحریک ہوئی ہے اور ان کو بھی انشاءاللہ اگلے دنوں میں مل جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضرورت ہے, اور چونکہ آبادیاں پھیل رہی ہیں, جب زیادہ محکمے ہوں گے تو وہ زیادہ فوکس ہو کے, چونکہ ہماری گاڑی جب سے پانی ختم ہو جائے تو بلدیہ کی گاڑی ساتھ میں ہوتی ہے تو بیک اپ کے طور پہ ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور کئی دفعہ آگ جب پھیلتی ہے, اور ریسنٹلی جو شہر کے اندر جو 1-1.5 مہینہ پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس میں ملٹی ڈائمینشن طور پہ کہیں اگر آپ نے دیکھا ہو یا بعد میں آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, 2 سائڈوں سے ہم نے فائر فائٹنگ کی. ایک سائڈ سے بلدیہ فائر فائٹنگ کر رہی تھی, اور جو جس سائڈ پہ جو کہ آگ پھیل رہی تھی, چونکہ آگ کا جو تسلسل تھا اس تسلسل میں دوسری سائڈ سے جو مسجد والی سائڈ تھی وہاں سے ہم نے فائر فائٹنگ کی, اور لگاتار اسی سائڈ پہ فائر فائٹنگ کرتے رہے کہ تاکہ آگ کو جہاں تک پھیل گئی ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. اور الحمدللہ چونکہ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی بڑی کامیابی تھی بلدیہ کی فائر بریگیڈ کی, اور پبلک ہیلتھ کا واٹر باؤزر بھی بیک اپ کے طور پہ وہاں مر ہے, اور وہاں ہم نے تقریباً 30 سے 35 ہزار لیٹر پانی استعمال کیا ہے بیک اپ کے طور پہ. چونکہ گاڑیاں ریفل ہوتی رہی, آ کے ریفل کرتی رہی, اور اس میں پرائیویٹ ایک واٹر باؤزر تھا, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں, جو جس پہ وہ ایک ان کا واٹر باؤزر تھا, پرائیویٹ ایک گاڑی تھی, وہ لوگ بھی بر وقت پہنچ گئے اور ہم نے اس گاڑی کو بھی یوٹیلائز کیا, اس کے پانی کو بھی یوٹیلائز کیا. تو اس میں یہ ہے کہ ملٹی ڈائمینشن طور پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے, یہ فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے بلدیہ کی ایک نئی گاڑی کی ایک تحریک ہونی چاہیے, اور جو یہاں کے ذمہ داران ہیں ان کو ایک اچھی تحریک کرنی چاہیے اس حوالے. تو اور چونکہ آپ نے بات کی کہ آپ نے دونوں طرف سے کیا, لیکن ہمارے یہاں جو اندر ہوتا ہے تو چونکہ ہر کام سے جو 1000 کام بھی اچھا ہو رہا ہے, لیکن ان میں چھوٹا سا کہیں نقص ہو تو ہم اسی کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے بھی کچھ دوست ہوں یا آج کل چونکہ ہر بندہ فون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے یہ بات کی تھی کہ وہاں پہ وہی پرانی گاڑی کے اوپر تبصرہ ہوا, کسی نے یہ بات نہیں کی کہ 1122 نے یہ کام کیا ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ نے کام کیا, بلکہ ہر بندے نے کہا جی یہ دیکھیں گاڑی کی کیا حالت ہے. تو اس لیے بھی میں نے یہ بات کی تھی. تو سر واپس آؤں گا, ہم تھوڑا سا اگر ہم بات کریں گے جو پچھلے سال بھی ہم نے کی تھی کہ دکانیں قیمتی بڑے بڑے سٹور ہیں یہاں پہ, لیکن وہاں پہ کوئی آگ کے حوالے سے سیفٹی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. آپ جب آئے تھے تو آپ نے بڑی بھرپور کوشش کی تھی, اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کہیں لوگوں نے سلنڈر لیے ہیں, وہ بال لیے؟ سر اس میں یہ ہوا کہ
कोई जब डिप्टी कमिश्नर साहब आए, डीसी साहब आए, तो ये जो जॉइंट मीटिंग हमारी चल रही थी, तो उस मीटिंग में हमारा एक ये मामला भी हुआ कि उसमें हमने ये जो एक्टिविटीज़ है, मैंने जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब के गोशे गुजार किया कि जी। सर चूंकि यहाँ पे जो इग्निशन हो रही है, कम से कम हर दुकान के अंदर तो नहीं, लेकिन ये जो होटल्स हैं जहाँ पे गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे आग जलती है, ये हमारे चाय खाने हैं, हमारे कारखाने हैं, बेकरीज हैं, तो इनके अंदर जो है वो होना चाहिए। और उन्होंने कुछ जो महकमा जाते जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, और वैसे उन्होंने उनको पाबंद किया इस बात के लिए। और मैं एक दिन एक होटल पे गया सिपलाई बाजार में, तो मैंने वहाँ पे एक फायर सिलेंडर देखा, और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि वो एक महकमे वाले आए थे, तो उन्होंने हमें कहा कि ये सिलेंडर लगा लें, तो वहाँ मैंने सिलेंडर देखा। वो मैं समझता हूँ कि ये एक अचीवमेंट है, कहीं बेहतरी की तरफ कदम है, लेकिन चूंकि ये हर होटल के अंदर होने चाहिए। और मैं अपने जो यहाँ के जो हमारे दुकानदार हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शहर आपका और हमारा है, ये दुकान है आपकी और हमारी है, ये बिजनेस आपका और हमारा है। इस बिजनेस के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो बाहर से बंदा नहीं सोचेगा। तो इसके लिए चूंकि एक बड़े पैमाने पे सोचना, हमारे चूंकि बाशऊर लोग हैं, इस तरफ तवज्जो देना बड़ा जरूरी है। और कम से कम फायर बाल और जो डीसीपी और ये ड्राई केमिकल पाउडर और फायर एक्सटेंशर वगैरह, ये एक एक कम से कम अपनी दुकान के अंदर लगाना बड़ा जरूरी है। तो अब तक कितना आप कर चुके हैं इसके हवाले से? चूंकि मैंने तो डी साहब को, चूंकि उन्होंने जो मुतल्लिका जो इदारे हैं जिनकी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है, उन्होंने उनको इनिशिएट किया है। तो चूंकि मैंने एक होटल के अंदर रिसेंटली देखा, तो उन्होंने कहा जी कि वो इदारे वाले आए थे, तो उन्होंने हमें कहा कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप पे कोई जुर्माना हो सकता है, कोई पाबंदी हो सकती है, तो हमने ये लगा दिया है। वहां पे मैंने देखा। ये मतलब उस तादाद में नहीं लग सके जिसमें आप चूंकि चाह रहे थे कि शायद बड़े पैमाने पे लग सके। तो हाँ, वो चूंकि फिर इस हवाले से चूंकि बाद में मैं प्रॉपर फीडबैक ले नहीं सका, लेकिन मैंने तहरीक अपने तय जरूर की है, अपने तौर पे जरूर किया कि हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें, और इस हवाले से ये जो एक पॉजिटिव स्टेप है इसको हम जरूर आगे लेके जाएं, और अवेयरनेस की हद तक कम से कम जरूर लोगों को एजुकेट करें इस हवाले से। तो सर, ये जो इससे कबल होता था फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग थी, जी वो करवाई जाती थी आपकी तरफ से, दीगर चीजें थी, फिर महकमे कुछ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया जो आपका डिपार्टमेंट था। तो अब ये जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, दीगर चीजें हैं, ये हैं आपकी उसमें? इसमें ये है कि रिसेंटली भी ये हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर कोशिश की, चूंकि हम अपने तौर पे जरूर करते हैं कि एक तो हमारा स्टाफ भी मोबिलाइज होता रहता है, कुछ हम भी सीखते हैं, फिर लोगों को थोड़ी हाव नाव करने के लिए फर्स्ट एड का। और अक्टूबर का जो पहला वीक है वो डिजास्टर वीक के तौर पे हमने मनाया है, और उसमें 4 इदारों के अंदर हमने ट्रेनिंग चलाई। और रिसेंटली जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब तनवीर इलियास साहब की हुक्म के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सरकारी मुलाजमीन की एक 3 रोजा ट्रेनिंग रखी, जिसमें सेशन थे। पहले सेशन के तौर पे पहला जो दिन था उसमें रेस्क्यू 1122 का हमने प्रैक्टिकली उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी, और फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग भी दी, और फायर एक्सटेंशर इस्तेमाल करने के तरीके, और हमने वहां पे फायर एक्सटेंशर इस्तेमाल भी करवाए, और सरकारी मुलाजमीन को ट्रेनिंग दी डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के अंदर। और फिर दूसरे और तीसरे दिन चूंकि सिविल डिफेंस के पास एक ट्रेनिंग विंग है, तो हमने सिविल डिफेंस के वो अगले 2 दिन सिविल डिफेंस वालों ने उसकी ट्रेनिंग करवाई, और उनका जो पूरा डाटा है वो सिविल डिफेंस वालों के पास है, उनके मोबाइल नंबर जिन और उसमें तकरीबन अबव 40 आई थिंक अबव 40 जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग थे जिन्होंने आके हमसे ट्रेनिंग की, और उन्होंने बहुत कुछ लर्न भी किया। और वहाँ पे मैं एक मुझे बहुत ही जो बात अच्छी लगी, वहाँ से महकमा जंगलात के एक जो वहाँ पे एक मुलाजम आए थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी खुशकिस्मती भी समझता हूँ मेरी कि वो वहाँ पे एक जुम्मा पढ़ाते हैं, खतीब है वहाँ पे जो ऑफिसर कॉलोनी की मस्जिद के अंदर। और उन्होंने जो जुम्मे का एक पूरे खुतबे के दौरान उन्होंने इसी फर्स्ट एड के हवाले से और उन्होंने रेस्क्यू 1122 के हवाले से इसी हवाले से बात की, और लोगों को ये एजुकेट किया कि आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हासिल करें, और फायर के हवाले से उन्होंने पूरा लेक्चर इसी हवाले से दिया। जी। तो ये जो आम आदमी है या दूर दराज गाँव में लोग सुन रहे हैं, उन तक आप पहुंचे हैं उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, उनको बताने के हवाले से। और दूसरा ज़िमनी सवाल ये है कि आप ज़ाती हैसियत में जो कि मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ इस हवाले से आप बात करते हैं, अवेयरनेस के हवाले से लेक्चर देते हैं, तो कोई शख्स वो चाहे प्राइवेट स्कूल से हो, सरकारी इदारे से, वो रब्ता करना चाहे कहीं पे भी, तो आप उस हवाले से दस्तयाब रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो कोई भी अगर प्राइवेट इदारा या गवर्नमेंट की कोई भी जो हमारे इदारे हैं, वो चूंकि वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारी एक आने वाली नस्ल है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम एक विजन बना लें
कि आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में हम 90% लोगों को या 90% नौजवानों को अवेयरनेस देंगे तो ये मुश्किल नहीं है। और जो भी हमसे अगर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने स्केड्यूल में जो हमारी जो मुख्तसर या जिस तरह की ट्रेनिंग होगी तो हम उसके मुताबिक जो है वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगे। और दूसरा जो आपने देहात की बात की, तो देहात के हवाले से अगर कोई कम्युनिटी बेस्ड अगर कोई एनजीओ है, कोई लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो वो अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं पर्सनली उनके पास हाजिर हूँगा। जी तो आपकी तरफ से नहीं है कि मिसाल के तौर पर किसी गांव में किसी इलाके में लोग चाहें कि जी हम बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, गांव के लोग इस हवाले से फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उस हवाले से वो अगर आना चाहें तो वो अगर आना चाहें, कोई ऑर्गेनाइज किसी जगह पे भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। हम इंशाल्लाह उनको फर्स्ट एड के हवाले से जो भी ट्रेनिंग का जो दायरा कार होगा हम इंशाल्लाह उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, कोई इशू नहीं है। मैं बज़मी साहब आपसे आखिर में एक मरतबा फिर पैगाम लूँगा। आज ये जो सारी गुफ्तगू हमने की है या इस हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, चूँकि बिल्कुल जुड़े हुए हैं आप लोगों से, पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी और बहुत सारे लोग आपके जाने के बाद भी बात करेंगे कि जी ट्रेनिंग के हवाले से या किसी हवाले से भी ये जो खदशात हैं, बिलखुसूस बदकिस्मती ये है कि जब हमारे घर में आग लगती है तो हमें एहसास होता है, दूसरे के घर की आग कभी भी हमें महसूस नहीं होती और हम कभी भी इन चीज़ों से सीखते नहीं हैं जो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन बात ज़रूर हमें करनी चाहिए। तो क्या इसको सामने रखते हुए एक आम आदमी को पैगाम देना चाहेंगे? सर मुझे इजाज़त है, मैं 2 पैगाम देना चाहूँ। जी। पहला पैगाम तो ये है कि मैं अपने जो शहर के अंदर जो लोग हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कहीं हमारी जो इमरजेंसीज गाड़ियाँ मूव होती हैं तो हमें रास्ता दे दिया करें जी। और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमें शहर से निकलते हुए बाज़ औक़ात 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। शहर के अंदर जो उस दिन आग लगी, हमें अपने दफ्तर से लेके ये आधा किलोमीटर इलाका भी नहीं बनता, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगे। और जनाब डिप्टी कमिश्नर और जनाब एसी साहब ने खुद उतर के लोगों को रिक्वेस्ट की, और लोग चूंकि वो कहते हैं ना कि हादसे से बढ़ के साना है ये हुआ कि लोग रुके नहीं हादसा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हादसे में ऐसे तमाशाई गाड़ियां बीच रोड में लोगों ने लगा के, तो वो तमाशाई के तौर पे वहां जाके देख रहे। बड़ा अरसा हो गया मैंने किसी हादसे की तस्वीर इसलिए नहीं बनाई कि वहाँ हजारों लोग बना रहे होते हैं, तो कहीं मैं भी उनमें ना गिना जाऊं कि बजाय इसके कि हालांकि हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम तस्वीर बनाएं। सर वो तस्वीर जरूर बनाएं, लेकिन अगर एक गाड़ी आप या बाइक दरमियान में पार्क करके आप तस्वीर बनाएंगे तो वहां पे इमदादी इदारे कैसे पहुंचेंगे? जी बिल्कुल। और सबसे जो बुनियादी मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आम हालात में भी किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। आप जब गाड़ियों की पार्किंग करते हैं तो स्पेसिफिक जगह पे करें और इतने स्पेस जरूर दें कि अल्लाह ना करे कहीं अपोजिट साइड से भी अगर कोई इमरजेंसी गाड़ी आती है उस वक्त हमें रास्तों का तयन नहीं करना पड़ता। हम ये समझते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, हम उस रास्ते पे जाते हैं और कभी कभार हम फंस के रह जाते हैं। वहां आगे हमें मालिक नहीं मिल रहा होता, हम चीख रहे होते हैं, गाड़ियों के हवाले से चीख रहे होते हैं। एक तो ये है कि गाड़ियां प्रॉपर पार्किंग करें।